in this session, again, we are picking up so important themes which you can always mold them towards the mains examination and for the prelims. Let me pick up the first one. US President dials Zelensky, EU leaders after Kremlin call. Trump speaks to Putin, says for Ukraine pace to begin immediately. So what we can see is that a kind of a push, a kind of a pull, and there is no time frame which they have mentioned for the peace. But then you can say that for geostrategic situations, not only bulwark of imperial and army power, but also ability to understand the crisis and ability to take all the leaders together makes a difference. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आफ्टर हिज कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन सोची, तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट बात की। तो ये ब्रेक थ्रू है, लेकिन क्या इससे पूरे विश्व का भला होगा? नहीं कह सकते। क्या इससे इंडिया का भला होगा? नहीं कह सकते। क्या इससे विश्व की सोच में परिवर्तन आएगा? नहीं कह सकते। क्या इससे जो डिस्क्रिमिनेशन और जो इनइक्वालिटी और जो हाई हैंडेडनेस और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है खत्म होंगी? नहीं कह सकते। तो दिस इज व्हाट वी कैन से विद दिस न्यूज आइटम। 70 countries are missing out on medical aid fund cuts। देखिए, अभी अभी मैंने एक बात कही, उसको आप यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं। Patients are missing out on treatments at facilities and have closed health. Workers have lost their jobs and people face increased out-of-pocket health expending because of US, what US did. WHO is currently facing a US 600 million hole in its annual budget as the US prepare to exit the organization. China is set to become the biggest provider of the state fees. Question arises that why big humanitarian and critical institutions have to depend upon the biggest powers so that they can carry out optimally their functions. Why international structure is like this? What India can do to change and to become a big power? 5 years after Brexit, UK and EU announced new deals and renewed defense and trade ties. So देख लीजिए आप, EU, वो यूके जिसने पूरे के पूरे कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया और साथ में बाकी कॉलोनीज को भी बर्बाद किया, वो ईयू के साथ मिलकर अब अपने डिफेंस एंड अपने ट्रेड टाइज को रिन्यू करना चाहता है। I want to ask you, how do you rate and see UK as a great power in the 21st century? Do you think it is a great power? It is a shadow of a great power. And in the global instability, do you think that the countries like UK, they are having a bigger share and it must not be there? And it is actually the countries in Africa and Asia which must get the same space, which is very much difficult in the next 50 years. Coming to the next point, pottery, organic farming, vocational training for Delhi middle school students is very, very important. Already many schools are there which are teaching how to use pottery, how to, work in human services, interaction with people in healthcare, food sectors, and community service. In each grade, students have to complete project from each work in academic year. The total allotted work is also given. So enable students available resources effectively, safety protocol, encourage students to apply work in school in real life situations. So that is how it is. And Kaushal Bodh and Kaushal Mela. Kaushal Bodh is very, very important from class 6 to 8. And yeah, we have to see from this perspective that coming to the next point, mystery to the panel, India Pak conflict conventional, no nuclear signaling. तो पहले भी हमारे गवर्नमेंट के जो सूत्र थे उन्होंने यही कहा था कि कोई सेंसेशनल ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर पॉइंट ये है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने इसको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो है हमें और कुछ करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि हमें इस दिशा में और सोचने की जरूरत है? तो दिस इज व्हाट यू कैन टेक अप एज अ काइंड ऑफ एग्जांपल, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। After cost overrun, government to send 100 teams to insect Jal Jeevan missions. We have already discussed about it, that how cost overrun, corruption, mismanagement is a very sore point. So अगर मैं आपसे बोलूं कि जल जीवन टीम, जल जीवन मिशन के लिए जो इंस्पेक्ट करने के लिए टीम बनाई गई, उस टीम में आप किस चीजों को देखना चाहोगे? उन चीजों में आप क्या चाहोगे कि कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? दैट्स हाउ यू हैव टू, दिस इज द काइंड ऑफ ए केस स्टडी व्हिच यू मस्ट डू, बिकॉज जो भी स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है, बिकॉज द स्कीम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट the schemes are across number of states and union territories, and
The team will go to randomly chosen states. पाक targeted Golden Temple, all drones missiles shot down. बड़े अफसोस और दुख की बात है. और there is a photograph which is showing that army personnel are displaying ammunition and weapons used by Pakistan to attack India during a demonstration near India-Pakistan border in Punjab. When we move further, new zero FIR for swift probe into cyber fraud. Very important, very, very important. What it is required. Do you, if I ask you that as an IPS officer and as a district collector also, अगर आपको तीन ऐसे पॉइंट ढूंढने हो कि आप न्यू जीरो FIR को जो ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट कर देती है साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स कंप्लेंट्स विद चीटिंग वैल्यू ओवर 10 लाख को आप 1930 नंबर से जब आप करते हैं तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ जो है तो आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे? कैसे आप जो न्यू सिस्टम है जिस विच विल ड्राइव इन्वेस्टिगेशन स्विफ्टली क्रैकिंग डाउन ऑन साइबर क्रिमिनल्स, it will be extended to whole nation very soon. So this is what we require, this is what how we have to fight, this is what we have to back breaking work है ये. So NCRP and 1930 helplines have enabled easy reporting and prompt action on complaints related to cyber financial crimes. I4C's NCRP system is very, very important. Move on to the next point. When we see, then we can see that land acquisition, parking policy, and non-fare revenue among reforms proposed to boost metro network. So metro network, which is already helping in cut down on carbon emissions, which is already making a transit-oriented development possible, which is already doing removal of exhaust and removal of car and personal vehicles from the lanes, from the roads. So land acquisition, parking policy, and non-fare revenue. इन तीनों फैक्टर्स को जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि metro corridors are going to be identified, long-term leases are going to be given, high floor area ratio should be allowed, and transport of cargo on metro trains during non-peak hours. इस बारे में चर्चा की गई. India's first metro railway service was opened in Calcutta in 1984, and as per ministry data, as of January 2020, country has about 1,000 kilometers of metro network functional in 23 cities. 1,000 kilometers, and 1,000 more is under construction. India's metro network is the third largest in the world, and soon I'm sure it will become the first largest, even when you people will also be part of the services. So while evaluating the functioning of metros in the country, Parliament is Standing Committee on Housing and Urban Affairs and in 2022 flagged the need to increase ridership, lack of parking as one of the reasons why commuters stayed away. Two more snow leopard cubs born at Darjeeling Zoo. This is very important. So you have to see that, we have to do a short research on snow leopard. And we have to think also about the plan and program on snow leopard, which India had been taking up, and also its status in IUCN. Wife devote for adultery not entitled to maintenance. So this is showcasing our cultural, our social, and our civilizational values. That's all what I can say. Shankar begins a three-nation trip. So you see that how it is a very, very difficult for, for officers and for the ministers. And, they will have to work in such a smart way that they have to, discuss on deepening bilateral partnerships and also benefits of forging a bilateral defense partnership. And also, the first foreign trip after this India-Pakistan hostility is very, very important. Unsafe for national museums, antiquities, Red Fort Barracks to house ASI collection. So declared unsafe by the National Museum for its high value objects in 2023, a Red Fort Barrack in Old Delhi is expected to house new Archaeological Survey of India Museum instead, according to the recent decision by Union Culture Ministry. So the ASI archives and the Archival Museum of Archaeology, which actually is very, very important. It is having large number of antiquities with them, and actually it is at Purana Killa. So nearly 8 kilometers from the 17th century Red Fort since 1974 with over 3.5 lakh items. आप सोचिए 3.5 lakh. So central antiquity collection means whatever had been excavated, the single largest collection had been kept there. So right to information act के तहत जब इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा तो कल्चर मिनिस्टर ने रिवील किया कि एक नया म्यूजियम 2023 में हमने बात करने की बात की और एएसआई को बोला भी. तो अर्लियर allotted to National Museum, the barrack CMPA3 was to display its arms and armor gallery and anthropology collection, despite the National Museum spending nearly 35 crore on retrofitting the space, including getting new showcases and fixtures, among other items between 2019 to 2023. An inspection had deemed CMPA3 unsafe for its high value objects.
इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनको नोट डेटेड July 2023 by B.R. Mani, then Director General, National Museum, states the ceiling of the first floor still had leakage in spite of retrofitting carrying out. The arrangement of lighting is very poor, either it is out of focus or the focus is not on the objects as shown in showcases. The star objects from National Museum's arms and armor collection, like those of Aurangzeb, Nadir Shah, and Rana Sangram Singh, too have been placed in barrack, which has lost its strength due to the fact that they were constructed in 1870s. And placing the star objects such as building is dangerous for the safety of historic arms and armors. सो वही बात है कि बैरक जो है, बैरक डिड नॉट हैव प्रॉपर अरेंजमेंट for our objects, which is why we propose that we should bring back our antiquities, and some items from the National Museum were brought back, but there are few still there. So ASI ने जब लिया था CMP-A3 स्पेस को, देखिए कहने का मतलब ये उस पर 30 से 40 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ, और उसके बाद जो है बैरक जो है ASI को हैंड ओवर कर दिया गया है फिर सारे फिक्चर्स के साथ। और ये भी आप कह सकते हो कि एंटिक्विटी सेक्शन जो है वो अपने आप में उससे जस्टिस नहीं कर पाए, और जनता का जुड़ाव तो भूल ही जाइए भारत जैसे देश में। सो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि ये जो जब तक अप्रोच चेंज नहीं होगी, जब तक इसको मेन स्ट्रीम माइंडसेट में नहीं लेके आया जाएगा, तब तक आप इस प्रकार के जो करेक्ट जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएंगे। ग्रामर इज अ पियानो आई प्ले बाय ईयर, ऑल आई नो अबाउट ग्रामर इज इट्स पावर। तो जॉन डिडियन ने ये बोला, and we also get statements in ethics paper. So grammar is a piano I play by ear. जैसा मतलब कि जैसा आप चीज को समझते हो, जैसा उसकी प्रैक्टिस करते हो, उस पर ध्यान देते हो, और उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो फ्यूचर, उसका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, आप इस तरीके से इस सेंटेंस को डिड्यूस कर सकते हो। व्हेन यू रीड इट केयरफुली, देन आप देखेंगे कि ग्रामर इज ए पियानो आई प्ले बाय ईयर। सो ग्रामर इज ए पियानो, यानी जैसे पियानो की ट्यून्स को व्हेन वी प्ले वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी स्मार्ट, एंड इट्स दैट्स व्हाई वी से पियानो इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑल आई नो अबाउट ग्रामर इज इट्स पावर। और मैं जो है ग्रामर की जो यहाँ पे इन्होंने एक वास्तविकता बताई, एक मेटाफर की तरह आप इसको सोच सकते हैं। हाँ, बैंक ऑफ इनोवेटर्स, व्हेन वी से मोर स्टूडेंट्स बी encouraged टू enroll in MTech and PhD program, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक अभी जैसे मंथली स्कॉलरशिप है 18,600 फॉर द गेट क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, दिस रिवीजन इज लॉन्ग ओवरड्यू एंड अलाइंस विद द 50% हाइक गिवन इन 2015. The aim is to make higher education more financially viable and reduce the opportunity cost for meritorious students. Very important. So MTech and PhD. Why interest in MTech and PhD is declining? UPSC also ask you when you go for interview कि आपने आगे क्यों नहीं पढ़ाई की अगर आपने BTech MTech किया है। सो जो रेस है, रेस टू सिक्योर जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, growing demand in industry coupled with attractive pay packages, and there are compelling options. Many bright students prefer pursuing MTech or research degrees abroad. Facilities हैं, higher scholarships हैं, global exposure है, better job prospects हैं। एंड बहुत सारे तो MTech को सिग्निफिकेंट मानते ही नहीं है स्किल सेट्स के लिए until it is from a premier institution. For students who do consider an MTech, the financial pressure is real. The scholarship amount is 12,400 per month. Last revised in 2015. So वही बात है कि many institutions are lacking high-end laboratories. Mentorship होनी चाहिए, industry linkage होना चाहिए, क्रॉस इंडस्ट्री डिसिप्लिन, क्रॉस डिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और देयर मस्ट बी ए काइंड ऑफ ए enthusiasm in academic circles होना चाहिए. So AICTE must take steps to improve upon the scenario of MTech and BTech. And AICTE is also responsible for expanding the eligibility for PG scholarship to include students who may not have cleared GATE but have shown academic excellence of CGPA 8.5 or above. In a landmark step, the AICTE is planning to include PhD programs under इट्स परव्यू। सो आप देखिए कि जब तक आप यशस्वी जैसी स्कीम्स आप गूगल कीजिए और उस पर एक लाइन लिखिए, जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक आप जो वर्किंग इंडस्ट्री है, जो कोलाबोरेशन है, उसको आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इंडिया इन द कस्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एआई टू क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टू स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब के लिए हमें इसके लिए हमें जो है प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए BTech MTech और PhD इज वेरी मच रिक्वायर्ड। We are at an inflection point. These are stirrings, we say, and the people who do not are not comfortable with English are now eager to join the conversation. अगर आप इस भाषा की बात करते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं मान लीजिए, तो
लिखा गया है इसको, इसकी अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो इंडिया इज a multilingual country, first of all. And secondly, English is a very important language, but English is not the native language. You know, ये पी के मोहन जी का कहना है कि ऑल ऑफ अ सडन आई एम बीइंग आस्क्ड टू डू टॉक्स, पॉडकास्ट, इवन लॉन्च माय न्यू बुक्स इन हिंदी, टू लेक्चर इन उर्दू, वेल आई एम श्योर दैट आई कैन मिक्स इन इंग्लिश इफ आई गेट स्टक. तो यानी कि जो भाषा है, डिग्लोसिया इन्होंने एक टर्म यूज किया. डिग्लोसिया है एक ऐसा बाइलिंगुअलिज्म, उसको हम कहते हैं जहाँ दो और मोर लैंग्वेज एक दूसरे को डुप्लीकेट नहीं करते हैं, लेकिन वो रोल प्ले करते हैं, लाइक द वे वी यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. देयर इज अ हाई लैंग्वेज फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर इज अ लो लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग टू चिल्ड्रन. इंग्लिश दोनों जो है वो बाइलिंगुअल नहीं है और ओवरलैपिंग नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं. टेक्निकल डिस्कशन इन हिंदी क्विकली स्ट्रेज इनटू इंग्लिश. एज वी रिलैक्स आवर गार्ड, आवर इंग्लिश डिस्कोर्स स्टार्ट्स इंक्लूडिंग बिट्स ऑफ हिंदी वर्ड्स एज वेल एज फ्रेजेस. तो वही बात है कि जब आप बात करते हो भाषा में, इंडियन लैंग्वेज बहुत एक्साइटिंग है. संस्कृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इतने लंबे समय से संस्कृत लैंग्वेज को जो है पेट्रोनाइज किया है, और उसमें की आम भाषा नहीं है. गोल्डन एज भी थी, गुप्ता पीरियड भी था, विजयनगर एम्पायर भी है, चोलास भी है. तो अब फ्यूचर में कैसे हो सकता है? जैसे दिल्ली का यहाँ ने एग्जाम्पल दिया कि यू नो दे आर गिविंग एन एग्जाम्पल, मैनी गवर्नमेंट स्कूल्स नाउ ऑफर इंग्लिश मीडियम टीचिंग इन देयर ए सेक्शंस. लेकिन बट ऑल दिस रियली मीन द टीचर आस्क चिल्ड्रन टू स्टैंड अप वन बाय वन एंड रीड आउट ए पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ये भी सही शुरुआत है. इसी से 10-20 साल बाद जो है चीजें और बदलेंगी, 10 साल बाद और बदलेंगी. और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस एक्सपोजर से इंग्लिश का कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, उससे भी आती है. व्हाट वुड सेट दिस राइट इज द बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स. ये जो कहना चाह रहे हैं वो और मुश्किल काम है, वो और कॉम्प्लेक्स भी है. हमारे पास भी जब स्टूडेंट आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड टू परफॉर्म ऑन चैनल, सो दैट दे कैन बिकम ए गुड ऑफिसर लेटर ऑन, अगर वो ढंग से करते हैं. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल दो कि इंडियन बॉय शुड बी एजुकेटेड इन होम मदर लैंग्वेज 8 वाज थॉमस बेबिंगटन मैकुले का एग्जाम्पल दे रही है. तो बात वही है कि ब्रिटिश राज ने नुकसान किया, लेकिन ब्रिटिश राज ने टेक्स्ट बुक फार्मूलाज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके हमें रूल तो किया, लेकिन कुछ चीज़ों के फायदे भी हुए. आप बताइए, अगर आपसे मौका दिया जाए, दैट व्हाट आर द 2-3 थिंग्स जब आप बात करते हैं, क्योंकि चाइना, जापान, कोरिया की तरह एक लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे. इंग्लिश मीडियम टीचिंग इज नॉट एसेंशियल इवन आफ्टर क्लास 18, चाइना, जापान एंड कोरिया. लेकिन वहाँ पर सिर्फ जापानीज है. हमारे यहाँ तो उर्दू है, मलयाली है, हमारे यहाँ हिंदी है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर तमिल है. सो दैट इज हाउ इन दिस डायरेक्शन व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी डन so that one can provide a better leverage. Moving to the next article, simpler registration, user friendly, OCI portal gets a facelift. This is an example you can give how digital infrastructure is getting better, how engagement is there with the foreign regional registration offices, and how India is working on different aspects and airways, and it is the role played by Ministry of Home Affairs. Moving forward, we can understand that top 5 cities account for 52% of mutual fund assets and women investor base rises. Very, very important. So Mumbai is leading the pack with 27% share, followed by New Delhi, Bangalore, and Pune. The dominance of these cities highlights the skewed distribution of mutual fund investments. In several states, individual investors dominate over 95% ऑफ AUM. सो पॉइंट वही है कि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है, वो तो नहीं बल्कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डोमिनेट करते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेंज, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ मार्केट. यंगर इन्वेस्टर्स आर मोर इंक्लाइन टू टेक हायर रिस्क, सिग्निफिकेंटली हायर शेयर ऑफ नेट इनफ्लोज जो देते हैं इक्विटी सेगमेंट में. ओल्डर इन्वेस्टर्स एग्जिट ए मोर कॉशियस अप्रोच विद कंपैरेटिवली लोअर परसेंटेज ऑफ नेट फ्लोज इन इक्विटी एंड हायर एलोकेशन टुवर्ड्स डेट. Notably, in the higher age bracket, the investors are increasingly opting for hybrid schemes, which provides a balanced blend of growth and stability, as well as 70 NFOs in equity category were launched in 2025. So ये हमें सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है. मार्क टू मार्केट गेन्स जो है वो सप्लीमेंट्री बूस्ट कैसे हो रहे हैं, तो ये अब देखने वाली बात है, इसको हमें देखते चलना होगा. पावर डिमांड्स obviously is dropping because of the rain is bringing relief to the grid managers. So this is a important indicator that how we must be prepared for unseasonal rainfall, and also we have to make sure
that our green energy must rise more and our thermal energy must go down. And even in thermal energy, we have to make sure more efficient energy. And we have already done an article with respect to comparison with China. That is what we must keep in mind. The load dispatch center, national load dispatch center's role becomes important in this regard. Moving forward, India, this is just, let me adjust the screen first. US farmers can offer non-GM soybean products to India. This is very important. US farmers have both GM and non-GM option available. क्वेश्चन उठता है कि आप उसको कैसे सर्टिफाई करेंगे, आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए जो हमारे जो फार्मर और हमारे जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, हाउ इट इज गोइंग टू हैंडल इट एंड द गैप हाउ वी कैन कंपेयर। सो what we can say, China became importing soybeans from the US in 1995. Within 10 years, China became the largest importer, but its total soybean oil exports also doubled, benefiting from US soybean imports. So this is one takeaway for us. AGR in context of AGR dues in context of telecom industry, Supreme Court dismisses Vodafone, Airtel and Tata Teleservices players. So केस यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज हैं वो देने पड़ेंगे। फाइनल जुडिशियल डोर शट हो चुका है और बहुत सालों तक ये चला है। कंबाइंड रिलीफ सॉट बाय वोडाफोन एंड भारती एयरटेल अराउंड अमाउंटेड टू 80,000 करोड़। तो इससे क्या है, आइडिया के शेयर 8% गिरे। सेम इज द केस विद द एयरटेल ओनली। सो वी मस्ट इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन एंड वी मस्ट अवॉइड अपियरिंग टू फेवर वन प्लेयर ओवर अनदर। दैट इज हाउ इट इज। एंड अब गवर्नमेंट को एक्ट करने की बात है, स्पेशली as it confronts conflicting imperatives. Wetter and hotter, ये हम कह सकते हैं। वेटर एंड हॉटर जब बात करते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि एक तरफ गर्मी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रही है, एक तरफ वो बारिश हो गई। सो प्री मानसून स्टेटस, नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च। सिर्फ सिंगल ट्वाइस और ट्वाइस देयर हैव बीन हीट वेव्स एंड द कंट्रीज कोर हीट, व्हाट आई कुड से कोर हीट वेव जोन, वो पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, दैट हैड शोन कूलर देन यूजुअल समर ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। क्यों है ऐसा ट्रेंड, हमने पहले भी बात की है। फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन द लोअर एल्टीट्यूड्स। Western disturbances are eastern bound winds that originate in Mediterranean Sea and cause rain or snow along the way. So there had been four such episodes, especially wet May is there, unusual wet May. साथ साथ में जब कंटिन्यूस इंकर्शन होता है मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम अरेबियन सी, वो इंडियन मेनलैंड में आता है, इट इज इंटरेक्टिंग विद द विंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग रेनफॉल एंड थंडर। सो टेम्परेचर फॉल्स डाउन बाय 5 to 7 degrees. So that is how it is. Even Delhi had been witnessing it more than once or twice, we can say. So additional below normal minimum temperatures have been there. In all across, we can say ample rainfalls are there. Southwest monsoon advanced into parts of Andaman Nicobar Islands, Andaman Sea, Bay of Bengal, and the weekly all India rainfall remained 35% above normal. So that is how even we are looking forward. We are going to see more and more toward the later half of June and in the early July, there will be more rains. अगेन हमने पहले भी चर्चा की थी कोर इन्फ्लेशन को लेके और आरबीआई के रेट कट्स को लेकर। इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय फूड प्राइसेस, अभी भी फूड प्राइसेस की वजह से होता है। डोंट थिंक दैट इफ द फूड प्राइसेस आर डाउन देन सडनली इट्स रोल इज गॉन। सो आरबीआई is supposed to focus on core and not on headline inflation, but now फूड इन्फ्लेशन इज ट्रेलिंग बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। वही बात है। सो यानी कि अब वो नॉर्मल एवरेज मानसून होगा तो फूड प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। खरीफ और रबी में भी ऐसा नहीं होगा। सेकेंडली, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है अबव नॉर्मल रेनफॉल का, वो साउदर्न वेस्ट मानसून को बोलता है कि जब आपका अबव नॉर्मल मानसून होगा देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज गोइंग टू बूस्ट। Uncertainties have subsided somewhat in the recent weeks. You can see the China US trade जो spill off चल रहा था। Secondly, there are chances that the Ukraine Russia war may also over. So that is how the factors are, there are different factors, and the cheap imports coming from China and Vietnam जो कि वो अपना रीडायरेक्ट करना चाहते थे अवे फ्रॉम द यूएस ड्यू टू ट्रम्प्स टैरिफ, वो भी चेंज हुआ है। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है इंपोर्ट्स के ऊपर फ्रॉम चाइना, एंड दैट इज आल्सो हेल्पिंग अस एंड स्टेबल रुपीज आल्सो देयर। सो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर नीदर फूड नॉर कोर इन्फ्लेशन बोथ आर नॉट वरिंग द आरबीआई।
Supreme Court on Friday struck down and held illegal a 2017 notification of Minister of Environment and Forest, which introduced a regime of granting ex post facto clearances to projects. यानी प्रोजेक्ट हो चुका है, आप क्लियरेंस उसको बाद में भी दे सकते हैं। सो एक क्लच ऑफ पिटिशंस ने इसको चैलेंज किया। कोर्ट ने 2021 के मेमोरेंडम को एक साइड रख दिया। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया था स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस के लिए। जजमेंट ने सेंटर को यह भी बोला कि ऐसे कोई सिमिलर ऑर्डर तो दे नहीं सकते, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006 को आप वायलेट नहीं कर सकते। सो वन टाइम 6 months विंडो फॉर इंडस्ट्रीज टू अप्लाई फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऐसे करके दे दिया। बट देन स्क्रूटनाइजिंग द प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से नहीं होता। मल्टी स्टेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, फाइनल रिकमेंडेशन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट कमिटीज होनी चाहिए, और लास्ट में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में है कि वो ग्रांट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उसमें आप पोस्ट फैक्टो कर देते हैं। सेंटर का कोर रेशनल था कि भाई जो हो चुका है उसको हम अनरेगुलेट और अनचेक नहीं रखना चाहते हैं, उसको कंप्लायंस के अंदर रखना चाहते हैं। वायलेटर्स जो है वो रेमेडिएशन और पोल्यूशन के लिए पे कर सकते हैं, और हम उसको फिर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट सेज that to protect those who have caused harm to environment and question whether development can happen at the cost of environment, उन्होंने ये भी कहा कि द सेंटर जो है, सेंटर कैन नॉट, what we can say, center cannot go up to any extent to promote development even at the cost of environment. It is illegal, amounted to infringing on the right to live in a pollution free environment. So बेंच ने दो जजमेंट्स आप नोट कर सकते हैं, कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एलएमबी फार्मास्यूटिकल वर्सेस रोहित प्रजापति केस, टू अफर्म द एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस वर एलियन टू एनवायरमेंटल। तो ऐसा, अब फिर हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन कर रहा है। ऐसे आप 3-4 केसेस और भी सोचिए जहां जहां पर सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के लिए बोलना पड़ा है और बाद में बदनामी भी सहनी पड़ी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बदनाम जुडिशरी होती है, जबकि वेकेशन जो है वो लॉयर्स लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऑफ टू ए गुड स्टार्ट। सो वही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जिसकी हमने बात की थी। पार्टिसिपेशन बाय मोर देन 1.5 लाख इंटर्नशिप्स अक्रॉस 735 डिस्ट्रिक्ट्स। सो आप देखिए, ऑटोमोबाइल है, ट्रैवल है, हॉस्पिटलिटी है, बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, माइनिंग, एफएमसीजी एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो है वेबसाइट पे आप जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, और आपको एक मौका मिलता है। फर्स्ट राउंड ऑफ पायलट फेज में इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स, मोर देन 6 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स, 1.27 lakh internship opportunities were posted in 280 top companies covering 75 districts. So this is what India needs to, more and more promote through skill based, through consistency, and through, deep commitment towards social change and also employment generation. When we speak about, again, जब हमने बात की थी understanding India's relationship with Turkey and Azerbaijan, so we are not breaking the relationship. We have a bilateral trade with Turkey. Turkey speaks for Pakistan. Turkey speaks for Islam, conservative Islamic principles. Turkey speaks for, not in India's favor. Turkey speaks for internationalizing Kashmir issue. Turkey is a middle power. It is a NATO ally. So what we can say is that for that India will be taking a very pragmatic stand. India is not going to do anything to discourage Turkey directly, but then we will be making more resilient. People must know, so people have their own way. And Turkey's arms export to Pakistan along with China are very significant. For example, naval, fixed, self-propelled guns, howitzers, multiple rocket launchers. Pakistan also received armored vehicles from Turkey, including trucks, armored cars, and personal carriers. But the question arises again that Turkey, who is also supporting Azerbaijan, so India is supporting Armenia in that context. What we can say, so it is a kind of a real challenge, and India will have to face it, and India is doing it. So here is a complete chart showcasing India's weapon export to Armenia, India's imports of crude oil over 6 years, country-wise share of India's imports of nuclear reactors and machinery. The ongoing price tensions, global oil demand is approaching a plateau. Obviously, हर country China नहीं है. With International Energy Agency expecting to grow only by to 7.3% sharply, the demand is not becoming very outlandish, which was 2 year ago, जब 2 साल पहले पीक पे था. तो क्वेश्चन वही है कि जब जैसा डिमांड होगा उसी के हिसाब से सप्लाई आएगी और उसी हिसाब से प्राइस होगा. सो सऊदी अरेबिया की स्ट्रैटेजी है
सऊदी अरेबिया मार्केट जो है अभी भी ऑयल से भरा हुआ है। क्रूड ऑयल इज नोवेयर नियर द $1,000 मार्क दैट ओपीसी एम्ड फॉर। तो 23 मेंबर जो प्रोड्यूसर है उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी सप्लाई रिड्यूस नहीं करेंगे। तो रीजन वही है कि जो सऊदी अरेबिया है इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंज फॉर इटसेल्फ इन नेक्स्ट 1 डिकेड। और जो के शेप्ड रिकवरी की बात हुई है, ऑयल प्रोड्यूसर डेस्परेट है रैंप अप करने के लिए। और न्यू जो सेवरल प्रोड्यूसर्स है वो भी लाइन में है, शेल ऑयलर्स है एंड नॉन ओपीसी कंट्रीज भी हैं जैसे ब्राजील और गयाना। वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी एक्सपोर्टर बने। तो इसीलिए ओईपीसी ने डिसाइड किया है कि हम जो है टोटल प्रोडक्शन जितना हमने सोचा उतना हम करते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज ओवर सप्लाइंग इन द मार्केट। इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया ने रशिया और बाकी जो उसके स्टेक होल्डर्स है वहां से किया है। एंड इराक हो गया। एंड द फैक्ट दैट द ग्लोबल डिमांड इज अप्रोचिंग अ प्लेटू, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इसमें रोल है। इससे ये भी पता लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। द काइंड ऑफ चेंजेस एंड द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यूनाइटेड स्टेट इज पुशिंग अप, इवन डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फॉलोइंग हिज आइडियाज विच ही वाज फॉलोइंग इन द फर्स्ट टर्म। सो सब चीज़ों से एक डिफरेंट डायरेक्शन आ जाता है। एंड दैट इज वाई इंडिया का अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का अपना एक सिस्टम है, इंडिया का जो है सऊदी अरेबिया के साथ भी, कतर के साथ भी। और आप कह सकते हैं कि जो इंडियाज ऑयल डिमांड इज वाइडली एक्सपेक्ट टू बी द सिंगल लार्जेस्ट ड्राइवर फॉर कमोडिटी टिल 2040 अलॉन्ग विद चाइना। ऑब्वियसली चाइना है, लेकिन इंडिया का डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ क्रूड प्राइसेस इन ए शॉर्ट रन इज ड्यू टू द ऑनगोइंग ऑयल वॉर। ये हमारे इंटरेस्ट में है, लेकिन अभी पूरी तरह से पिक्चर ऐसी नहीं रहेगी। लोअर ऑयल रेवेन्यू विल बी हर्टिंग आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सेवरल वेज, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि जनरल इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है ऑयल एक्सपोर्टर्स का, जो हमारे लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर्स भी हैं। इससे बायलेटरल ट्रेड, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, इनबाउंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, सब चीज़ों में फर्क आता है। तो आवर रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू भी कम होगी, जो ये हमारा लार्जेस्ट आइटम है एक्सपोर्ट बास्केट में। और रिफाइनरी मार्जिन भी थोड़ी कम होंगे। तो इसीलिए गल्फ इकॉनमीज जो हैं, जो हमारे बहुत सारे इंडियंस भी हैं वहाँ, वो जो हमें यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं उसकी भी एक बात है। तो क्वेश्चन वही है कि ये एक न्यू नॉर्मल है, और इस न्यू नॉर्मल को हमें आगे लेके जाना है, और हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना है। Atomizers are used everywhere where a liquid needs to be distributed in a specific and efficient way across what you can say, you know, any surface or through space। तो क्वेश्चन वही है कि आपको एग्जाम में आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, व्हाट इज एन ऑटोमाइजर? एक डिवाइस दैट क्रिएट्स अ स्प्रे। स्प्रे क्या है? स्प्रे इज ए कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स दैट डिस्पर्स एज गैस। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमाइजर्स आर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ स्प्रे रिक्वायर्ड। देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ सच स्प्रे। तो सिंपल वेज इन स्प्रे डिफाइंड इन द ड्रॉप साइज, स्प्रे पैटर्न एंड द एंगल ऑफ एप्लीकेशन। तो वही बात है, एटोमाइजर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। देयर आर मेनी एटोमाइजर्स। one mechanism they share all that is that creates space by blowing up some liquid. So liquid flowing through a wider channel is suddenly forced into a much narrower channel. इससे क्या होता है? प्रेशर आता है। A sufficiently high pressure drop will cause the liquid to break up into small drops, and if the narrower channel has a notched opening to the other end, the spray emerges as a flat fan, a kind of a, you can say, spray painting। जितना नैरोयर चैनल होगा शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएगा, जैसे आप परफ्यूम के केस में एग्जांपल समझ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन से। So that is why atomizers are used, and they are, very important. They are playing a very important role as far as different, activities, economic activities are concerned. For example, power plants में coolants sprayed on what I can say blades। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए। Then secondly, एक स्प्रे ड्राइंग होती है, यूज टू मेक मिल्क पाउडर बाय क्रिएटिंग ए स्प्रे पासिंग थ्रू हॉट गैस टू ड्राई इट। ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। देन यू हैव एविएशन सेक्टर में होगा, एरोस्पेस सेक्टर में होगा, फायर फाइटर में होगा, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर में होगा। एंड यू कैन से इट इज यूज इन नेजल स्प्रेस टू डिलीवर ड्रग्स टू द लंग्स, पेन रिलीफ। सो प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट एक अपने आप में क्वेश्चन है, मेक ए शॉर्ट नोट आउट ऑफ इट। और एटमाइजर्स, कुकिंग ऑयल्स, मिरर क्लीनर्स एंड फ्रेग्रेंसेस फॉर हेयर्स एंड परफ्यूम्स। तो वही बात है कि एक हम्बल डिओड्रेंट जो है वो भी एक तरीके, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो एक तरीके का स्प्रे ही है। इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं, एनर्जी वनरेबिलिटी की बात आती है, दोनों कंट्री इंपोर्ट डिपेंडेंट है, दोनों कंट्री वनरेबल है। लेकिन दोनों कंट्रीज में डिफरेंस ये है कि इंडिया के जो चैनल्स हैं वो स्ट्रेटेजिक है, इंडिया के चैनल्स हैं जो स्टेबल हैं।
इंट्रा रीजनल एनर्जी जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मेक्स इकोनॉमिक सेंस बट फेसेस सिग्निफिकेंट political barriers. And what we can say is that India's diverse electricity generation mix could complement पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है. India is expanding natural gas, ecosystem is also helping us. पाकिस्तान का ऐसा नहीं है. इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी मच मोर हायर है और कॉस्ट सेविंग्स भी हमारी हो सकती हैं. लेकिन फिर वही बात है कि रिसेंट टेरर अटैक हैज डैमेज प्रोस्पेक्ट्स फॉर कोऑपरेशन एंड आल्सो व्हाट वी कैन से सिक्योरिटी कंसर्न्स है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं. तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कुड बी क्रिटिकल फोकस फॉर बोथ द कंट्रीज. इंडिया के लिए तो है, इंडिया अपना काम कर रही है. देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, बट देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि 90 दिन का कम से कम होना चाहिए. 20 दिन से ज्यादा का स्टॉक पाकिस्तान के पास एट टाइम नहीं होता है. तो इंडिया का वही है कि इंडिया का अपना एक स्टैंडर्ड है. पैनिक बाइंग इंडिया में अभी भी नहीं हुई. जब वॉर होने लगा देर वॉज नो पैनिक बाइंग, देर वॉज नो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोक दिया गया. सो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 74 डेज से 90 से 120 डेज तक हो सकता है. और पाकिस्तान के पास तो बेसिक लेवल ही नहीं है. तो ये एक कंपैरिजन के लिए हम देख सकते हैं. आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि व्हाट आर द 4 स्ट्रेटेजिक एरिया. जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमिक्स के पेपर को देखिए आप, मेंस के. उसके हिसाब से आप 4-5 चीजें निकाल सकते हैं. महादेव बेटिंग ऐप बहुत समय तक केस में आया. उसके अंदर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का नाम भी है. सेबी का रोल भी उसमें आ रहा है. लिस्टेड कंपनीज लिंक टू द ऑनगोइंग महादेव बेटिंग ऐप केस एंड फाउंड इंस्टेंस ऑफ वायलेशंस की बात की है. मैनिपुलेशन एंड इलिसिट राउटिंग ऑफ बेटिंग प्रोसीड्स इनटू इक्विटी मार्केट्स की बात है. पैसा लगाया है, गलत है. एंड the point we have to understand is that a network of Benami bank and demat accounts has been used to facilitate the layering of transactions. इलिसिट बेटिंग की प्रोसीड्स थी. मॉरिशस एंड दुबई बेस्ड शेल फर्म्स हैं, उनको आपने एफपीआई बना दिया. फिर स्मॉलर कंपनीज बना दिया. फिर उन्होंने आप थिनली थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स बना दिया. इनको प्रमोट करके आपने फर्म्स को प्रमोट करके प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर दिए. सेल ऑफ प्रमोटर कंट्रोल्ड शेयर्स एंड इशुएंस ऑफ शेयर वारंट्स in order to inflate share price with the help of string of agents and middlemen. Once valuation rose, promoters sold their holdings at a profit, cycling the money back as a clean proceed. Very, very important, very, very important. The last paragraph which I discussed with you. Please make a cyclic diagram on your own. IRS officers को ये concept इतने clear होते हैं कि one of my students have even done a book on money laundering. बिल्कुल सही बात है कि एआई के पोटेंशियल क्या है. एआई के पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, सोवरिन इंडिया एम्बिशियस जो अभी इंडिया का जो एआई एम्बिशंस है, तो अब एक सोवरिन एआई विच इज रेफर्ड टू द नेशंस कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सिक्योर एआई यूजिंग ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एंड एल्गोरिथम्स, वर्कफोर्स एंड बिजनेस नेटवर्क. ये कीवर्ड है, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं. उसके बाद रेगुलेटरी एंड एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. हाई हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है. डेटा क्वालिटी की बात है, स्किल की बात है. तो इंडिया जो है सोवरेन एआई मॉडल से बेनिफिट हो सकता है. नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ और उसके साथ साथ R&D, गवर्नेंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमें कम वो करना है. मतलब कम हमें रिलाई करना है. इंडिया के एआई मिशन में जो जीपीयू क्लस्टर सब्सिडीज हैं वो इस डायरेक्शन में सही कदम है. इनेबलिंग वाइडर एक्सेस टू कंप्यूटिंग पावर फॉर AI R&D, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला. तो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक एरियाज है, बैंकिंग है, हेल्थ है. देन यूनिवर्सिटीज को हम इस डायरेक्शन में हम नीति आयोग और नीति के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं. और अब ये भी देखिए कि जो इंटीग्रेटिंग एआई विद द एग्जिस्टिंग डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें ट्रेडिशनल एडॉप्शन से यहाँ लेके आएगा. वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल फॉर MSMEs, इंडियन कैंसर केयर मॉडल डिलीवरिंग एट स्केल एंड लो कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें यही 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं कि कैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होकर भी हेल्थ केयर के अंदर इतना ज़्यादा एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम को क्रिएट करता है और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को उसमें सपोर्ट करता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जिसने कारकिनो को एक्वायर किया और साथ में जो है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को लेके आए. 80 सेंटर्स हैं अक्रॉस 12 स्टेट्स. तो ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है कि कैसे. तो द पॉइंट इज कैसे एक बड़ी कंपनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के बावजूद एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करती है जिसको आप एक नया
कह सकते हैं डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यूएस कैंसर मूनशूट इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल इस डिसफंक्शन का। लेकिन हमने, यानी हमने का मतलब है कि भारत ने और भारत के जो अग्रदूत हैं, जैसे अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम भारत का अग्रदूत कह सकते हैं, उन्होंने कंपैशन के साथ इसको किया। 80 सेंटर, जैसे मैंने कहा, 12 स्टेट्स और इतने सारे लोगों को उसको करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और करिकुलम मॉडल को पूरे इंडिया में हमने एक्सपेंड किया, तो इसीलिए वो तो अपने 18% ऑफ जीडीपी करते हैं हेल्थ केयर, तब भी पुअर आउटकम है। तो आप हमें क्यों बदनाम करते हैं? हम तो बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए हमें और एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट रिवाइज द फेडरलिज्म फॉल्ट लाइन। तो ये एक अपने आप में पॉइंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट को दिया है उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर, ओपिनियन मांगा है। तो अब देखते हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल इन विच कोर्ट हैज बिकम अ पार्टी, ऐसा कहना है। बीजेपी एट द सेंटर हैज बीन अ वोटरी ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन स्टेट्स अंडर नॉन बीजेपी पार्टी दैट ऑफन बीन द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऐसा एक व्यू पॉइंट है। हम इसको इस मुद्दे को हम बार बार डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें इंडिया यूके फ्री ट्रेड डिजिटल स्पेस के लिए क्या पैराडाइम है, तो डिजिटल स्पेस के लिए यही पैराडाइम है कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हमारे एक जैसे होंगे, लैंग्वेज मॉडल हमारे एक जैसे होंगे, भाषा हम एक दूसरे की जानते हैं, सोर्स कोड सेफगार्ड हमें देखने होंगे, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस के हमें देखना होगा कि हम जो है उसका फायदा उठा पाए, और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर जो है वो क्रेडिटेबल डिस्प्यूट मैकेनिज्म हमें देखना होगा। तो ब्रिटिश और इंडियन फर्म्स दो हैं, दोनों के दोनों अपना काम करें और सेम प्रोसीजर कंफर्ट होगा दोनों का, क्योंकि दोनों की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री है। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है डोमेस्टिक रिफॉर्म के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जरूर बढ़ेगी। भारत में भी अब ब्रिटिश का फ्लेवर आएगा, और ब्रिटिश भी भारत की जो इंडिजिनस ग्रोथ है, इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम, उसकी टेक डिप्लोमेसी है, उससे वो सीखेगा। और इंडिया यूके जो एफटीए है, वो एक तरीके से अब स्ट्रैटेजिक एम्बिशन की तरफ बढ़ेगा। इज ट्रम्प एजेंडा अबाउट यूएस जॉब्स और ग्लोबल सुप्रीमेसी, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप इस पे मुझे बताइए। आप तक हमने जितना डिस्कशन किया है, चाइना के साथ जो यू कर रहे हैं, जो अफ्रीका के साथ उन्होंने किया, जो जेलेंस्की के साथ किया, जो इंडिया के साथ किया, जो कूद कर सबसे पहले ट्रूथ सोशल पे लिखा कि मैंने मीडिएशन करा दिया है, तो ट्रम्प का एजेंडा आखिर है क्या? यूएस की जॉब्स या फिर ग्लोबल सुप्रीमेसी? अगर हम बात करें वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डी एस्केलेशन एंड न्यू नॉर्मल्स, तो वही बात है कि ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जितना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जितना फ्रेजाइल सारा वर्ल्ड है, जितनी चीज़ें हैं, अब वो समय नहीं है कि हम वॉर करके एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को डिस्ट्रिक्शन की तरफ ले जाए। लेकिन फिर भी डिसफंक्शनल है। हमारा डब्ल्यूटीओ डिसफंक्शनल है, हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसफंक्शनल की तरफ है, वर्ल्ड के जो जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यूएस ने ईरान के साथ, इराक के साथ क्या किया, गल्फ, मिडल ईस्ट और गल्फ में क्या किया, अफगानिस्तान के साथ क्या किया, क्या वो सॉल्यूशन था? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये जो इनहेरेंट फ्लॉज है, इसके अंडर से ही हमें देखना होगा कि हम भी इंडिया, भारत वर्ष कैसे अपने आप को आगे देखता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत जो है तैयार नहीं है, लेकिन भारत कभी भी नेगेटिव वॉर नहीं चाहता, लेकिन अब भारत पीछे भी नहीं हटेगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो वही बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इंडिया में, आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, आईएसआई है, हॉलमार्क है, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ में साइट सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी कंडीशंस हैं। इसमें आप एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखिए, एपिडा को देखिए, साथ साथ में आप मैरिन एक्सपोर्ट्स को भी देखिए, और उसके साथ साथ आप क्वालिटी कंट्रोल में आप साथ साथ में उन कंपनीज को देखिए जिनके लिए इंडिया इंडिया जो है बहुत मौका दे रहा है, गिफ्ट सिटी है, साथ में एससीजेड्स हैं। उन सबको आप देख के जब आप देखते हैं, तब आप देखेंगे कि जो लार्जर फर्म्स हैं वो वो क्या स्मॉलर फर्म्स के मुकाबले हमेशा अच्छा कर रही हैं, और स्मॉलर फर्म्स एमएसएमईज को भी क्या हम उतना ही क्वालिटी कंट्रोल रेज करके मौका दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। एंड अगर मैं, हाँ, दिस इज ऑल फॉर द डे। ओके, वन मोर आई थिंक आई वाज मिसिंग आउट, एआई चैलेंज फॉर कंपटीशन लॉ।
सो एआई इज ऑफरिंग एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड इंसाइट्स, लेकिन फिर वही बात है, पोटेंशियल रिस्क। तो एआई टैलेंट है, लेकिन एक्सेस टू दीज इनपुट्स रिक्वायर सीरियस मनी, लार्ज इंक्यूबेंट की कंपटीशन हो नहीं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मार्केट दोनों को वो कंट्रोल करेंगे, एक्सेस देंगे नहीं, जैसे गूगल ने नहीं दिया या फिर मेटा ने नहीं दिया। कोई भी इंक्यूबेंट डिजिटल मेजर जो है, फॉर एग्जांपल, वो कैसे उतने लेवल के ऊपर वर्क कर पाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई क्वालिटी डेटा कैसे आम जनता तक पहुंच पाएगा। सो कंपटीशन अथॉरिटीज विल हैव टू टेक नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि स्मॉलर एआई प्लेयर्स कैसे प्रमोट होंगे, स्मॉलर एआई प्लेयर्स को कैसे एक लेवल प्लेइंग स्पेस मिलेगा। लार्ज डिजिटल प्लेयर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्किल मैन पावर उनके पास है, और वो विन विन सिचुएशन में, क्योंकि इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, डेटा का भी फ्री यूज कर रहे हैं, तो लेकिन क्या ऐसा स्मॉलर कंपनीज कर पाएंगी। सो माइक्रोसॉफ्ट इंटर एलिया obtained a license for inflections intellectual property rights and acquired practically all its staff including its two founders. So the question arises whether this deal amounts to a merger under competition law, and if so, whether it would adversely affect the competition. बस आप इस एंगल से सोचिए, और आप फिर एक शॉर्ट नोट बनाइए। और रैपिड जो इमरजेंस है एआई का इंडिया में, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, competition commission of law, competition commission of India will soon later be confronted with the cases of AI markets both in the merger front and antitrust complaints। आपको बस इतना देखना है, इस एंगल को आप देखिए, ज्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना है। क्योंकि कंपटीशन अथॉरिटी जो यूएस, ईयू और यूके की हैं, उन्होंने कंपटीशन जो है इन इन जनरेटिव एआई में जो है, फाउंडेशन मॉडल्स में और एआई प्रोडक्ट्स में उन्होंने डाला है। और उन्होंने कहा है कि उसमें उसमें जो है हमें कंपटीशन को प्रमोट करना होगा, कंपटीशन को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, एंटी ट्रस्ट और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को हमें हर हाल में रोकना होगा। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द की ड्राइवर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस, तो आप पहले अपना सोचिए कि आपके हिसाब से जो सुमित डावरा मैम है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अब वही रिपीटेटिव बातें अगर हमारे पास आती हैं कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर गति, फिर उसके बाद आपके पास जो है इंडियन की जो फ्राइट वो फॉरवर्ड्स हैं, उनके अंदर जो है आपको आरएफक्यूज, जिसका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है, उसकी बात आ जाती है। फिर उसके बाद आप चार लॉज की बात करो, जो इंडिया में लेबर लॉज को हमने पाक करने की बात की है कि वो आने चाहिए। उसके बाद हमारे जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी बात कीजिए। फिर उसके बाद जो है सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स पार्क्स की बात कीजिए, फोकस स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल साइट्स, स्पीडी अप्रूवल्स की बात कीजिए। फिर हमने गति शक्ति की बात की, एसईजेड की बात की, जेएनपीटी की बात की। फिर आप बात कीजिए एचएसएन कोड, जैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइनमेंट्स के लिए। और यूलिप की आप बात कीजिए, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की हमने बात की। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक डेटा बैंक की, तो ये की वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमने अभी विजिंगम पोर्ट को अभी हमने इनॉग्रेट किया था, वो आप लेके आइए। एक्सिम डॉक्यूमेंटेशन को लेके आइए। सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट लीडर के लिए जो मैम ने कुछ आइडियाज बताए, जैसे मैंने पहले ही बोला, गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान उसका है, उसके डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, यूलिप है, ये सब चीजें मिलाकर भारत जो है 32 ट्रिलियन प्लस इकॉनमी बनने की बात करता है। हम सब बनाकर रहेंगे, आपका भी रोल होगा। फॉर राइट, फॉर द लाइट विद इन द टनल। सो एक स्टोरी है ये स्टोरी मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ। सुसाइड की बात है। डेथ बाय सुसाइड्स हैव बीन राइजिंग इन बोथ इन अर्बन इंडिया, रूरल अर्बन इंडिया, शार्पली अमंग मेन एंड वुमेन। सबको काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्टिग्मा फ्री स्पेस चाहिए, एम्पैथी चाहिए, विलेज सपोर्ट ग्रुप्स और अर्बन पीयर वर्क चाहिए। अफसोस की बात है, हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की और जीवन ही नहीं बचा पा रहे हैं। अफसोस की बात है, हम वो एम्पैथी और केयर नहीं लेके आ पा रहे हैं। अफसोस की बात है, जो यहाँ पर दिया गया है कि एनसीआरबी और डब्ल्यूएचओ के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया में 1,71,000 सुसाइड्स हुई हैं, 30 to 36% ऑफ द ग्लोबल। सो इंडिया में बहुत ज्यादा है, रेट इज 12.4%, वेरी हाई, बट लोअर देन कंट्रीज लाइक गोयाना एंड लेसोथो। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप सोचिए चार ऐसी कौन सी बातें एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, एज एन ऑफिसर, एज अ सिटीजन आप करेंगे, जिससे आप इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइजेज कि कैसे आप जो है, जो अभी एग्जाम्पल हम अगर लें कि कैसे इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, अगर उसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे उसको आप हाई फाई, या कैसे आप उसको बनाएंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर भी बात की, तो उसमें चार कीवर्ड यहाँ जो रेड कलर में हैं, आप उसको भी बात कर सकते हैं कि जो प्राइवेसी, पहली बात तो होनी चाहिए।
प्राइवेसी अगर ब्रीच हो रही है तो लेजिटिमेट एम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो वैल्यूज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और रॉबस्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड होने चाहिए अब्यूज के अगेंस्ट। तो वही है रॉबस्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, डेटा मिनिमलाइजेशन एंड पर्पस लिमिटेशन, ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क्स। तो ये तीन बातें हमने पहले भी की हैं, और इन्हीं बातों पे हमें देखना है कि ये बेडरॉक है डेमोक्रेसी के, बेडरॉक है एआई के, बेडरॉक है सिटीजन्स राइट्स के, ये बेडरॉक हैं आपकी प्राइवेसी के। जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जब माना गया था, उसके बाद की बात है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप डिजिटल प्रोटेक्शन राइट्स को देखिए, जो अभी डिजिटल डेटा एक्ट भी आ रहा है, डिजिटल स्पेस भी आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपको देखना होगा, तभी हम सब मिलकर एक जो है लेजिटिमेट हम एक इकोसिस्टम बना पाएंगे और नुएंस्ड फ्रेमवर्क को आगे बढ़ा पाएंगे। So this is all for the day. Thank you very much, and I will see you again in the next interaction with more ideas and discussions.